So hi guys, this is MD Murtaza Alam, a UPSC CSC candidate from here Bhiwadi, Rajasthan. It's around 11 p.m. I am recording this video. You may think why I am here. So I am here to share my experience of UPSC CSC journey for last 3 years, which I have been going through. Why I started this journey, what I learnt, what are my gains, what are my losses, what mistakes you need to avoid, and some of the very key suggestions I think you must have before embarking upon this journey. So the first thing first, why I started this journey. Okay. In the beginning, just like you guys, I started because of the glory and charisma that a civil servant carries. It attracted me too. Okay, like IAS, IPS, entry, etc. I will not deny that. But more than that, I am someone who is highly ambitious. Okay, still I am quite ambitious. I want to reach the pinnacle of my life. I did not have the control over my birth. How did I born here? But I have the control. How will I die? That's what I'm following right now. Okay, and I am someone who wants authority. Okay, to transform my own life, my family's life, my society life, wherever I can contribute positively. And that helped me to sustain in this journey even after 3 years. One thing I need to clarify, I have not cleared yet, but I still in the journey, and which is a very beautiful part. And I am very lucky. I am very fortunate to enter in this journey. I consider myself and strong enough to continue, and I have zero regret. Although I have not qualified yet. Okay, and another important reason over the time I realized that look वो जो आई एस आई पी एस एंट्री वो सब अब पीछे छूट चुका है ओके दे आर नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ माई कोर फिलोसफी to sustain in this journey. Two, three major things remain intact. Number one, I want to influence the policy of this nation. I know it seems exaggeration, but look here, the top bureaucrats they do influence policy, okay, directly or indirectly. And the best way to get there is to become a civil servant. Like if you become IAS, IPS, IFS, these are the cream layer of bureaucracy who influence. I hope the same. It takes time, but not impossible. Okay, and now let's move ahead. So I will share all the relevant main points here, which I needed to you to understand when even if you are a beginner or if you are just embarking. I have written some of my bullet points which I need to follow, so I will go point wise. Better for you to understand, better for me to explain. I will discuss first opportunity cost or the loss which I have sustained. Uh, One of the biggest loss that I have gone through in this journey, I lost my father. Yeah, I lost my father 2nd Jan 2K24 last year, and it was the biggest loss not just in CSE journey but of my entire life. And more than that, more painfully was that I was not there with him in the last moment. Basically, I am from Bihar, okay. Right now, I am Bhiwadi, Rajasthan, preparing here. So when he was in the last moment of his life,
I was not there, and I found it very bad for me. Although I have recovered, and I'm going to prove that whatever I do, my Father feels proud. Even from the heaven itself, He will feel proud. I will make sure. So that's one biggest loss that I have to sell through. Number two, sorry. Right now, I don't have a strong alternate career option. Okay, I am a plain BCom, sorry, honors BCom. Okay, and I started this journey 3 years ago, hoping that I will clear this journey sooner than later. Since childhood, I remained a good student. Means a bright student, you can say. 10 CGP in 10th, and before that also I got good grades, good marks, and in 12th graduation I cleared with first division without much difficulty. But this is the CSC journey. It's taking time, and I don't know why I am unable to decode the core philosophy, or you can say code, where I can sail through all the three stages of CSE journey. But I'm trying, I'm still trying, and I will sooner decode and qualify this. Sorry. And number three, which I have sustained the losses, like a lot of sacrifices I have made in this journey. Okay. Since my hometown is in Bihar, I'm here in Bhiwadi, Rajasthan. You can understand I cannot go every moment Bihar every now and then. It's not possible. So I lost many of my friends with functions, and many occasions. In fact, uh, they are far away. They are leading a happy life, which is great and good. Uh, I lost friendship, and this is real. In CSE journey, you have to go through this. आप चाहो या नहीं चाहो, life will bring such moments where you two were you or you four were good friends, very close friends, but over the time closeness decreases and you remain alone and people move ahead, and this happens especially when you are stuck in a journey. It happens because they can't stop their life for you, but life is how it is. You have to keep going. And number four, I have lost some of my hair. Okay, thank God my hair is in not so good so much, but it's quite well. But it was earlier more dense, but after studying a lot, I lost some of my hair. But that's completely fine. Sooner than later, it will come back again. सॉरी, 2-3 दिन से एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ओके, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी. And yeah, another important thing, as a loss, as a opportunity cost you have to face in this journey is um, continuous anxiety, pressure, peer pressure. Your friends are moving ahead. मतलब वो अच्छे पैकेज उठा रहे, मेरे अपने फ्रेंड्स अच्छे पैकेज उठा रहे, दे आर अर्निंग गुड इन लाइफ. किसी की तो शादी हो गई, कोई तो आगे बढ़ गया है, कोई तो अच्छी जॉब ले चुका है, बिजनेस खड़ा कर चुका है, एंड आई एम स्टिल समवन हु इज searching Mughal on the Google. Okay, it's very true. Okay, means we go through NCERT, what we read Mughal Empire, and we search on Google. Yeah, so I hope you can understand that. I am someone, although I have gone through advanced book also, but just to keep things light, it is true. Okay, तो एनजाइटी प्रेशर होता है इस जर्नी में. लोग आगे बढ़ चुके हैं, फोमो आता है यार, मतलब कि अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए. यू आर 25, 26 एंड स्टिल यू आर इन दिस जर्नी एंड यू आर रीडिंग, studying and depending on the family. Before coming to CSE journey, I was earning. Okay, but after coming to CSE, I stopped earning just to give my best here. As a result, still not qualified yet. But that's okay. Great things take time and challenges come. Okay, that's a normal part.
Let me say some important points more. And now let's come back to the gain. What I have gained in this journey. Okay. सो गेन तो काफ़ी कुछ है मेरे पास, ठीक है ना. एंड मटेरियल गेन बोलोगे तो वो मेरे पास अभी नहीं है. लेट्स बी ऑनेस्ट हेयर. आप बोलोगे हैव यू क्लियर CSE जर्नी आफ्टर 3 years? आई विल से नो. आपने क्या पैसे वैसे कमाए? आई विल से नो. एनी अदर मटेरियल गेन ऑन पेपर एक्सेट्रा? आई विल से नो. But some of the internal qualities which I have gained, literally they are more powerful than money itself. Okay. Let me decode them. Number one, personality development and personality transformation, I will say. I can definitely say that if you compare Murtaza 3 years back from the Murtaza who is speaking in front of you right now, you will find definitely a very different person. You can see the kind of guts, voice, confidence, authority in my voice itself. You can witness it. Okay. And trust me, I'm not speaking just to express or influence you. No, trust me, it is my normal voice which has become. uh, and this thing means personality transformation is magnetic in CSE journey. Even if you can ask anyone who has spent 1 to 2 years seriously in this journey, he or she can explain this, that this confidence, this much seriousness, maturity comes. Okay. Number one. Number two, इमोशनल मैनेजमेंट, वो मैंने काफ़ी तगड़े तरीके से सीख लिया. ओके. आई लिव अलोन हियर विथ माई भैया इज़ इन सर्विस, प्राइवेट सर्विस. ओके. अब मैं सारा दिन रूम पे ही रहता हूँ, जो काम है काम करने जाता हूँ, पार्क वार्क जाता हूँ नॉर्मल. बट इमोशनल मैनेजमेंट मैंने करना सीख लिया. सॉरी. एंड नॉट जस्ट इमोशनल मैनेजमेंट बट इमोशनल इंटेलिजेंस. एथिक्स में वैसे भी हम पढ़ते ही हैं, डैनियल गोलमैन आपने पढ़ा ही होगा, और वो मैं काफ़ी तगड़ा सीख गया हूँ. ओके. आई नो हाउ टू मैनेज माई इमोशन, नॉट जस्ट माइंड बट अदर्स ऑल्सो, एंड हाउ टू चैनलाइज इट इन द राइट डायरेक्शन, and how to not let fears and anxiety and pressure or emotional imbalance to overcome my rational maturity. Never. Okay. I will not deny that I am a superhuman, etc. uh, I feel pressure, I feel loneliness, I feel emotional breakdown, I feel it, but I don't let this feeling to overcome my rational maturity. Never. Okay. नंबर 3, कॉन्फिडेंस. आप देख सकते हो, स्माइल आप देख सकते हो. 3 साल UPSC में रगड़ा खाने के बावजूद भी मैं भी मस्त बिंदास हूँ, हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ. एंड अपनी जर्नी को रीस्टार्ट तो कर ही चुका हूँ, और अच्छे डायरेक्शन में चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या. नंबर 3. नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल काफ़ी ज़बरदस्त आ चुका है मेरे अंदर. लाइक I know what to do and what not to do, and I follow that. Okay. No one can come and dictate me and manipulate me directly or indirectly using psychology etc. क्या पैसे नहीं से चले जाओ, ऐसे एक दिन कोई ऐसे कर दो वैसे कर. नो, दे कैन नॉट डू सो, बिकॉज स्पेंडिंग ईयर्स रीडिंग ओशियंस ऑफ सब्जेक्ट, ओशियंस ऑफ कॉन्सेप्ट, आपको सच्चाई पता चलने लगता है. व्हाट्स गोइंग ऑन इन लाइफ, व्हाट्स गोइंग बियॉन्ड इन दिस वर्ल्ड, आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगता है. एंड यू अंडरस्टैंड एंड यू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली. ओके. यू स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड डिफरेंटली. फिर आप नॉर्मल नहीं रह जाते हो कि आपको कोई भी कुछ बोल देगा, आप का दिमाग घुमा दिया तो आप घूम गए. नहीं, आपका फिर खुद पे ज़बरदस्त तगड़ा कंट्रोल बन जाता है. आपको पता है डोपामिन क्या होता है, आपको पता है एड्रेनलिन क्या होता है, आपको पता है आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो. फिर आपका सेल्फ कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है. फिर आप व्हाट एवर डिसीजन यू टेक फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैच्योरिटी, एबंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी. ओके. नंबर 5, ऑर्गेनाइज प्लान एंड स्ट्रक्चर. या मैंने ये 3 चीज़ अभी अच्छे से सीख लिया. लाइक मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं उसको पहले रिटन फॉर्म में लिख देता हूँ, भाई ये करना है, स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, प्लान अच्छे से कर लेता हूँ, ऑर्गेनाइज तरीके से करता हूँ. आई मीन मेरा दिन का रूटीन भी देखो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज हो चुका है. ऑल्दो देयर आर सम रैंडमनेस बट रैंडमनेस आर जस्ट माइनर. ओके. प्लानिंग स्ट्रैटेजी आर द मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ.
एंड अब मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ पहले उस पर विचार कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ करना है नहीं करना है, प्लस माइनस क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एवरीथिंग, देन आई टेक दैट डिसीजन। आई मीन कोई एक्शन भी लेना हो तो। एंड इट डज नॉट मीन पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, नेवर, वो मैं होने नहीं देता हूँ। ओके, जस्ट टेक एक्शन मेरा मोटो भी है। हाँ, बट रैंडम नहीं खेल जाना कि एकदम अंधे में खेल हवाई फायरिंग कर रहे हैं, वो नहीं करना। इतना होना कि प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, वो मैं अच्छे से करना सीख गया और मैं ऑर्गेनाइज तरीके से करता हूँ। ये आप चीज़ आप सीख जाते हो सी जर्नी में। और नेक्स्ट जो बिना बताए सबके पास आ जाता, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल डेप्थ है। 2-3 साल पढ़ोगे तब वैसे भी आप काफ़ी कुछ सीख ही जाओगे। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक एकेडमिक्स आपका आप सीख जाते हो, यू लर्न अबाउट फिलोसफी, यू लर्न अबाउट साइकोलॉजी, यू लर्न अबाउट एथिक्स। ये सब जो नॉर्मल एकेडमिक्स के बाहर आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो फिर आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, आईआर, पॉलिटिकल साइंस, अब ये सब तो वैसे भी मतलब ज़बरदस्त रूप से आप सीख जाते हो, जो कि आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर एट द सेम टाइम एक अच्छा लीडर बनाने के काम आता। एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे नहीं आप, सिविल सर्वेंट बन के वो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बट आप एक अच्छा लीडर ज़रूर बन जाओगे, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। ओके, आप जिस भी फील्ड में जाओगे इसके बाद, टीचिंग में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, जॉब में, अब जहाँ भी जाओगे आप एक तगड़ा लीडर बन के उभरोगे, ये तो एकदम श्योर एंड सर्टेन है। ओके, आप चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हो, आप प्रोसेस फॉलो करना सीख जाते हो, आप प्रोसेस से ट्रस्ट करना सीख जाते हो, आप सेल्फ कंट्रोल सीख जाते हो, आप रिस्क लेना सीख जाते हो, यू लर्न रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो, यू लर्न हाउ टू इंस्पायर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये सारी चीज़ आप सीख जाते हो। ओके, फिर आप एक और चीज़ सीख जाते हो, दैट्स कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया, जो मैंने कर रखा है काफ़ी टाइम से। आई डोंट यूज़ इंस्टा और FB। अर्लियर बिफोर कमिंग टू दिस जर्नी आई यूज टू हैव इंट्रैक्शंस देयर, बट उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया। अब तो लिटरली बताओ तो मेरे को वो डिस्ट्रैक्शन लगता है। अगर कोई ज़रूरत नहीं हो रिसेंट में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ज़रूरत के अनुसार हम सेइंग तो मेरे को जाना पड़ सकता है सोशल मीडिया पर। अदरवाइज़ मैं अपने तरफ से कट ऑफ ही रखना चाहता हूँ। ओके, so these are some of the qualities which you gain in this journey, positives, and trust me these are very powerful soft skills जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट सम ऑफ द मिस्टेक्स टू अवॉइड इन दिस जर्नी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप लोग को भी नहीं करने हैं। मिस्टेक्स जो कुछ मैंने किया है, जो मैंने सीखा है वो नहीं करना। नंबर 1, बिना प्लान बी के इस जर्नी में नहीं कूदना है। Please don't jump in this journey without having a strong backup, strong fallback option. Okay, I am a BCom ग्रेजुएट। 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया, मेरे को भी लगा कि मैं आ जाता हूँ, पढ़ने में अच्छा हूँ, मजबूत हूँ, ये फलाना फलाना। मैंने स्टार्ट कर दिया एंड द रिजल्ट इज़ आई एम स्टिल इन द जर्नी। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज़ हाउ मच यू आर हार्ड वर्किंग, कैपेबल, डिसिप्लिन does not guarantee that you will succeed in this journey. Okay, because this journey has different mindset, different ball game, it takes a different trajectory and different decoding you need. हम जब तक उन सारे पॉइंट्स को आप मास्टर नहीं कर लेते हो आप इस जर्नी को क्वालिफाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। ओके, सो हैव ए प्लान बी। नंबर 1, प्लान बी का मतलब ये नहीं कि आप डर रहे हो कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। प्लान बी का मतलब ये है कि आप यहाँ पर आओगे तो आपको एंजाइटी नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, और आप डर डर के नहीं खेलोगे। ओके, कह रहे यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो, मेरे साथ तो ये फीलिंग होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपके पास प्लान बी रहेगा तो आप मज़े से बिंदास ओपन माइंड के साथ खेलोगे। ओके, आपको फिर हारने का डर नहीं रहेगा। नंबर 1, सॉरी। एंड नंबर 2, डोंट चेस द परफेक्शन। ये एक नॉर्मल मिस्टेक जो हम सब करते हैं किसी भी फील्ड में हो, परफेक्शन चेज नहीं करना है। इम्प्रूवमेंट शुड बी द गोल, नॉट द परफेक्शन। ओके, एंड आई एम समवन जो काफ़ी परफेक्शन चेस किया हूँ पास्ट में, मैं उसका रिग्रेट भी हो थोड़ा थोड़ा कहीं नहीं, क्यों मैं इतना हर चीज़ को परफेक्ट बनाने के पीछे था, जो मेरी गलती थी। नहीं, वो नहीं काम करता है इस जर्नी में। आपको इतने सारे सब्जेक्ट करने, इतने सारे सिलेबस ख़त्म करने, आप परफेक्शन के पीछे नहीं भाग सकते हो। आपको 80-90% पे खेलना पड़ेगा आउटपुट पर, एंड उतना भी आ जाता है, दैट्स ग्रेट। आप उसको समय के साथ इम्प्रूव करो, ऑब्वियसली करो, बट 100% एक चीज़ के पीछे मत भागो।
वो ब्लेंडर होता है, मत करो। ओके, नंबर 2। नंबर 3, एटलीस्ट यार 2-3 साल का टाइम लेकर आना जब भी आना इस जर्नी में। ओके, अब ये मत सोचना कि आप टॉपर रहे हो स्कूल कॉलेज के, मैं भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप 1 साल में आओगे करके निकल जाओगे, कोई गारंटी नहीं मेरे दोस्त। आप पापा के परी हो सकते हो या फिर पापा का परा हो सकते हो। यूपीएससी डज नॉट केयर अबाउट दैट, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बी pragmatic देन टू ड्रीम अबाउट आइडियलिज्म। ओके, कि आएंगे 1 साल में हो जाएगा, नहीं होता यार वैसा, 2-3 साल लग जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप जल्दी कर लो। माई बेस्ट विशेस, मोर पावर्स आर देयर विथ यू। ओके, बट 2-3 साल का बैकअप लेकर आना, ठीक है। नंबर 3, सॉरी, मैं कुछ 2-3 की पॉइंट्स रखता हूँ लास्ट के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जो मैं लास्ट में बोलूँगा। सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आई नीड टू शेयर राइट नाउ विथ यू इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट दैट गेट योर मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। एंड ये बात अक्षर जैन सर ने ही बोला है। आई एम ऑल्सो सेइंग दैट गेट योर मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स, मेंस रेडी कर लो प्रीलिम्स के पहले जितना हो सकता है। उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। मैं अभी डैट टेक्निकलिटीज़ में अभी नहीं जा रहा हूँ, दूसरे वीडियो में मैं बात करूँगा, ठीक है। नंबर 2, इफ़ पॉसिबल, अगर आप पैसे कमा रहे हो तो कमाते रहो, जॉब छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डोंट डू दिस ब्लंडर कि आप जॉब छोड़ के हीरोपंती दिखा रहे हो इस जर्नी में आने के लिए, मत करो, पछताओगे गुरु। ओके, डोंट डू दैट। जॉब कर रहे हो, करते रहो, उसके साथ टाइम निकालो। ओके, वर्सेस में नहीं जीना है, विथ में जीना है। ओके, ये नहीं कि यूपीएससी वर्सेस जॉब, नहीं, ये गलती है। यूपीएससी विथ जॉब, इस पे फोकस करना है। ओके, वर्सेस में नहीं, विथ पे फोकस करना है। ये आपको एक फॉल बैक ऑप्शन देगा, ये आपको सेंस ऑफ रिलीफ देगा कि हाँ भैया मेरे पास जॉब है, पैसे कमा रहा हूँ, मैं फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, फैमिली से लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। वरना ये फीलिंग आता है, ट्रस्ट में, गाइस, ये बहुत गंदा फीलिंग आता है, फिर मैं फील करता हूँ, इसीलिए ये नहीं होने का। नंबर 3, अकेले रहने की आदत डाल लो, ठीक है ना। आपके बड़े अच्छे फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होंगे, फलाना फलाना, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड और दे विल मूव अहेड। ये 2 चीज़ होगा, बट दे विल नॉट बी देयर विथ यू, ट्रस्ट में, क्योंकि ये लंबी जर्नी होती है। तो अकेले रहने का आदत डाल लो, खुद का शोल्डर थपथपाना सीख लो, एंड हैव योर ऑन बैक, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। ऑल्दो देयर इज गुड, इट्स गुड टू हैव फ्रेंड्स एंड यू मस्ट हैव, बट डिपेंडेंसी नहीं रखने का इमोशनल नीड्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए, ठीक है ना। अकेले रहने का आदत डाल लो। इट्स नॉट अबाउट लोनलीनेस, इट्स अबाउट सॉलिट्यूड, जितना एंजॉय करो उतना ही बेहतर है। नंबर 4, फालतू के मोटिवेशन वीडियो देखकर मत आना इस जर्नी में। आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, ग्रैंड एंट्री हो रहा भाई, वो सब बस शुरुआती दिन के लिए होता है, फिर आप बहुत जल्दी बर्न आउट कर जाओगे, तो ये मत होने देना, ठीक है ना। if you really want to join this journey, if you are really mentally tough and very strong, please come in this journey. नंबर 4, टेक रेगुलर ब्रेक्स। जो मैंने गलती किया, मेरे को लगा कि मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा, ज़्यादा टाइम दे दूँगा तो ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाए, नहीं होता भाई वैसा। टेक रेगुलर ब्रेक्स, हैव फन। ओके, ज़्यादा मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे, 4 हाथ से खाने से ये क्या बोलते हैं, अब ज़्यादा नहीं खा पाओगे, आपके पास मुंह एक ही है। ओके, तो टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब ब्रेक्स इसलिए नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, आप थक चुके हो, इसलिए कि आप थोड़ा रिफ़्रेश फील करोगे, इसलिए कि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाओगे, माइंड शांत रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में माइनर ब्रेक्स लेते रहो। ओके, बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई लाइक टू शेयर विथ यू, एडिक्शन आपका कैसा भी हो उसको छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो। कैसा भी एडिक्शन हो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आप वेरी हाई डोपामिन एक्टिविटी नहीं कर सकते हो लाइफ में। तो कैसा भी आपका वेरी सॉरी एडिक्शन हो, लत हो, उसको छोड़ दो। दारू, शराब, सिगरेट, पॉर्न, मास्टरबेशन, जो भी आपका, प्लीज़ उसको छोड़ दो, वरना आप नहीं सस्टेन कर पाओगे। सस्टेन तो छोड़ो, आपको कुछ बड़ा लाइफ में कभी भी, आप किसी भी फील्ड में, यूपीएससी छोड़ दो यार, आप किसी भी फील्ड में हो,
अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है ना, तो आप वेरी हाई डोपामिन एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर सकते हो, नहीं, वो आपको बहुत नुकसान करा जाता है। वो मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कभी और बात करूँगा किसी और वीडियो में। ओके, नंबर नेक्स्ट, ऑलवेज कीप योर हेड हाई। ओके, अपने सर को कभी झुकने मत दो। वाइल लिसनिंग वन वीडियो फ्रॉम स्टोइक ट्राइब चैनल ऑन द यूट्यूब itself, he said very powerful line, if you are a real man, no, if you want to do something big in life, you have to keep your emotions intact, even when everything is falling apart, everything is withering apart। आपके आसपास की दुनिया बिखर भी रही है ना, तो भी आपको शांत माइंड के साथ अपने काम पर फोकस करना होगा, विथ ए स्माइल ऑन द फेस। ओके, अगर आपको ट्रू लीडर बनना है तो आज सब कुछ बिखर भी रहा है आपके आसपास, फिर भी आपको एक शांत माइंड के साथ अपने काम पर फोकस करना होगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो इसका क्या मतलब होता है। मेंटल टफनेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ओके, एंड सम ऑफ द अनदर वेरी की पॉइंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है। जो प्लेंटर मोस्ट ऑफ अस करते हैं, बाद में फिर बहुत तगड़ा रिग्रेट करते हैं, तो वो नहीं करने का। नंबर 1, प्लीज़ डोंट अबंडन योर लाइफ एट एनी कॉस्ट। आई एम रिपीटिंग दिस, अपने लाइफ को अबंडन नहीं करना यूपीएससी के लिए। क्या से यूपीएससी अपना दुनिया हो गया, सब कुछ तुम्हारे लिए, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं, प्लीज़ डोंट डू दैट। एन्जॉय योर लाइफ, हैव फन, ठीक है ना। वरना प्रेशर, एनजाइटी, बर्नआउट, फेल्यूर का शिकार होते फिरोगे। एन्जॉय योर लाइफ, बहुत ज़रूरी है लाइफ। यूपीएससी जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द लाइफ इटसेल्फ। 3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाइफ को एंजॉय करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, एंड स्टिल आई एम जर्नी इन द जर्नी। अगर केवल सेक्रीफाइस करने से मैं क्वालिफाई कर चुका होता तो मैं भी बहुत पहले कर चुका होता, बट ऐसा नहीं होता। लाइफ एंजॉय करो। नंबर 1, पढ़ाई भी करना, बट लाइफ को भी लेकर चलना। नंबर 2, डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। ये तो मैंने बहुत गंदा मजाक किया एक समय। ओके, पहले 2 सालों में मैंने अपने लाइफ पे हेल्थ पर फोकस ही नहीं किया। मेरे को लगा ठीक है ना यार, एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे, हेल्थ का क्या है वो तो, मतलब अभी यंग है, जवान है, एनर्जी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, तो ठीक है ना, ये कर लेंगे, मतलब लाइफ हेल्थ तो फिर से वापस आ ही जाएगा। नहीं दोस्त, वैसा नहीं होता। हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ मत करो। मेंटेन योर हेल्थ, मेंटेन योर फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा ही आधा घंटा ही सुबह निकालो, पार्क जाओ, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, जो करना करो, बट हेल्थ पर खास ध्यान रखो। मैंने बचपन में कुछ पढ़ा था मोरल वैल्यू के बुक में, लाइक इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। आई होप यू गेट इट। Next, number 3 is action without expectation or desperation or neediness. What does this mean? It simply means, अब जो भी एक्शन ले रहे हो, ओके, सीएससी जर्नी में, प्लीज़ एक्सपेक्टेशन मत पालना, डिस्परेशन मत लेना, नीडीनेस मत दिखाना कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे रिजल्ट आ जाए, मेरे पीडीएफ में नाम आ जाए, फलाना डैम करना, कुछ नहीं होता। आप और निगेटिव वाइब भेज रहे होते हो कॉस्मोलॉजी में, आप और अपने जो आने वाले रिजल्ट है उसको दूर कर रहे होते हो। जैसे मैंने गलती किया हुआ मत करना, नीडीनेस मत दिखाना यार, जो चीज़ मिलना होगा वो वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। अपना इनफैक्ट लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ सेज इन भागवत गीता, मैं वो संस्कृत की पंक्ति तो बोल रहा हूँ, बट मैं उसका आपको मीनिंग बता दे रहा हूँ। एक्ट विदाउट एक्सपेक्टेशन इन सिंपल टर्म्स। ओके, तो अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो मिलना होगा मिल जाएगा। इनफैक्ट I would like to quote Stoic philosopher and Roman Emperor Marcus Aurelius. He taught very powerful line that what must live will live, what must stay will stay. I will fight free of fear with open heart in the now. Okay. And next thing, चौथा नंबर, प्लीज़ डोंट मेक यूपीएससी योर लाइफ। ये गलती मत करना। लाइफ इज़ मच बिगर यार, यूपीएससी जस्ट एन एग्ज़ाम। आप यहाँ नहीं कहीं और छक्का मार रहे होगे, ठीक है ना। लाइफ बहुत अच्छा है, आप बहुत सुंदर है,
लोग यूपीएससी से बाहर आके भी बहुत तगड़ा झंडा गाड़ देते हैं, गाड़ी दें। अनदर इम्पोर्टेंट वेरी पावरफुल लेसन फॉर मी इन दिस जर्नी इज, जो आपके लिए हो सकता है, प्लीज़ गिव टाइम टू योर फैमिली एंड टू योर लव्ड वंस। प्लीज़, जो आपको टाइम देना चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, प्लीज़ उनको टाइम दीजिए। डिजिटली, फिजिकली, जैसे होता वैसे दीजिए। ओके। मैंने ये गलती किया क्योंकि आई टोल्ड इन द बिगिनिंग दैट आई लॉस्ट माई फादर व्हेन ही वाज इन द हिज लास्ट मोमेंट, आई वाज नॉट देयर विथ हिम। ट्रस्ट मी, इट हर्ट्स डियर, इट हर्ट्स। मैं जिनके लिए कर रहा था वही नहीं है, सोचो कैसा फील होता होगा। सो आपके जो भी फैमिली है उनको टाइम दीजिए, और ये नहीं कि पढ़ाई 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 कर रहे हैं, सब कुछ छोड़े हुए हैं, नहीं, ऐसा मत करिए। I obviously you need to be very conscious about your study, notwithstanding, give respect and enough time to your family. One more thing I would like to tell here, that since we are young, we have friends, opposite gender friends also, who are important to us, apart from our family. अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है तब बोल रहा हूँ। अगर आपको इम्पोर्टेंस वो देते हैं तो उनको आप टाइम दे सकते हो, बशर्ते वो आपके पढ़ाई के बीच में नहीं आए। ओके, एकदम अबैंडन नहीं करना है। कुछ लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, यार तू तो मतलब कुछ और ही बता रहे हो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक समय सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था, ठीक है ना। वन ऑफ माई फीमेल फ्रेंड, आई स्टिल रिमेंबर हर। ओके, वी वर इन टच सिंस चाइल्डहुड, since school days, and she tried to contact me many times in this CSE journey. I was a second attempt. Okay, I was so busy that I could not give her the time. Not because we are GF और BF, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना, बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड थी मेरी। तो आप समझ सकते हो, जो चाइल्डहुड के साथ हम साथ रहे हैं, एंड स्कूल डेज में भी साथ पढ़े हैं, उसका अभी भी अच्छा खासा रिलेशन था अपना, दोस्ती वाला। नाउ शी इज़ मैरिड, नाउ आई कैन नॉट टॉक टू हर, एंड इट्स रिग्रेट विच आई हैव, कि अगर मैंने उससे थोड़ा अच्छा फ्रेंडशिप मेंटेन किया हुआ तो आज वो मेरी अच्छी फ्रेंड होती। ओके, नाउ अगर हम चाहे भी तो अब हम बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज शी इज़ मैरिड नाउ। ओके, लेट मी वेरी फ्रैंक हियर, हम वी आर नॉट GF BF, ऐसा कुछ नहीं है, बट विद वी वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड शेयर एवरीथिंग एक्सेट्रा। सो ऐसे फ्रेंड्स अगर चले जाते हैं लाइफ से तो इट हर्ट्स यू, कि आपने बंदी को टाइम नहीं दिया जो आपको टाइम देने की रेडी थी। ओके, सो ये गलती नहीं करना। अगर आप मैनेज कर सकते हो प्लीज़ मैनेज करो इस चीज़ को। फैमिली फ्रेंड्स ज़रूरी है यार, एकदम मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, बशर्ते ये सब चीज़ें आपके पढ़ाई में बाधा नहीं होनी चाहिए। आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग एंड टफ होना चाहिए। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा बहुत टफ हो चुका है वैसे इन 3 सालों में। आई कैन सस्टेन एनीथिंग एंड एवरीथिंग राइट नाउ। तो अगर आप सस्टेन कर सकते हो तो प्लीज़ डोंट अबैंडन दीज थिंग्स। ओके, अरिस्टोटल सेड द वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट फ्रेंड्स फैमिली आर नॉट who allows you to be corrupt, but more than that, they provide emotional and mental support. They provide you the motivation to sustain the tough time, and it's very true. Okay, so these are some of the lessons, experience, gains, lost, which I have shared with you right now. I hope this will help you to understand and get a correct of your CSE journey, कैसा होता है एक्चुअल में। ओके, लेट मी टेल यू, जो फ्रेशर हैं, जो इस जर्नी के अभी नहीं स्टार्ट किए, जो सोच रहे हैं, दिस जर्नी इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। ये मत समझना कि मैं आऊँगा झंडे गाड़ दूँगा एंड यू विल बी एट द टॉप ऑफ द पिनाकल, वैसा नहीं होता। Some do, some are great, they achieve good things very early in life, my well wishes to them, but ज़्यादा केस में ऐसा नहीं होता। सो ज़्यादा ख्याली पुलाव पका के नहीं आना। जितना रियली मेरे को भी लगा था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में आऊँगा, झंडे गाड़ दूँगा, ऐसा नहीं हो रहा, अभी मैं जर्नी में हूँ। ओके, सो बी रियलिस्टिक। सॉरी, एंड जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अर्निंग के लिए एंड सारी चीज़ों के लिए, इनफैक्ट अब आप मुझसे पूछोगे साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, तो राइट नाउ आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स। ओके, मैं ट्यूशन देता हूँ बच्चों को। मैं अच्छे रिप्यूटेड स्कूल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वेयर आई कैन गेट ए गुड अर्न। ये UPSC CSE अभी जर्नी अभी चलता रहेगा, ठीक है ना। मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा अभी, बट साथ साथ मैं पैसे भी कमाने पर फोकस कर रहा हूँ।
एंड मैं जल्द ही सोच रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ाना शुरू करूँ, यूट्यूब पर ही जो भी कुछ पढ़ा है, जितना भी नॉलेज गेन हुआ उसको यहाँ यूटिलाइज़ करूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर आगे वीडियो में बात करते हैं फ्यूचर प्लानिंग, वी विल डिस्कस सम ऑफ द लेसन्स विच यू लर्न फ्रॉम मी एंड जो आपको लगा कि ये रिलेवेंट जो रिजोनेट कर पाया आपके साथ, प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगर आप में से कोई है जो सुन रहा है जो ऑलरेडी इस जर्नी में है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है प्लीज़ बताएं। एंड नंबर वन इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको मेरी जर्नी में से सबसे यूनिक पॉइंट क्या लगा, वो ज़रूर बताएं आप, ताकि मैं देख सकूं क्या क्या अच्छा क्या बुरा रहा। उसके अलावा कुछ यूनिक जो लगा आपको ये एकदम रिलेवेंट है बंदा ये यहाँ पर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू सून। मैं जल्दी फिर से अगली वीडियो में मिलता हूँ। टेक केयर, लव यू गाइस, एंड या लाइफ एंजॉय करना वो मत भूलना।